Hello students, welcome back to ISR Academy. In this final module of a chapter of respiration and circulation, we'll be talking about the last part of the chapter of circulation, which is blood pressure and the disorders related to the circulatory system. Students, previous module mein we talked about all the important aspects of the working of the heart. We talked about the cardiac cycle, we talked about the conducting system of the human heart, and we also talked about the internal structure of human heart. So basically we have covered by and large almost everything. Now what we are left with is to talk about certain minor aspects of the chapter, and that what we are going to conclude today. So students, let's start with a very important topic of blood pressure. Now students, what do we exactly mean by the term blood pressure? Okay, so हमारे पास कुछ एक definition है जानने का जो कोशिश करते हैं. Now blood pressure is nothing but the pressure. It is the pressure which is exerted on the walls of the arteries. Okay, it is a pressure which is exerted on the walls of the artery. See, understand, now your heart is connected to two major blood vessels. Okay, so one is the pulmonary artery and another is the aorta. Now aorta and pulmonary artery, ये दोनों के दोनों blood vessels are going to take the blood away from the heart. Now talking about the artery, specific artery which is the aorta, is going to supply the oxygenated blood to all the parts of the body through its major distribution, which is the aorta, followed by multiple other arteries. Now when we talk about multiple other arteries, when the heart is contracting, ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, उस दौरान हार्ट इज गोइंग टू इंड्यूस सम काइंड ऑफ अ प्रेशर ऑन द आर्टरीज. प्रीवियस मॉड्यूल में हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आर्टरीज या ब्लड वेसल्स के पास तीन अलग अलग लेयर्स होते हैं. आउटर मोस्ट इज एक्सटर्ना, मिडल मोस्ट इज मीडिया एंड इनर मोस्ट इज एंडोथेलियम और इंटरना. सो जो ब्लड जब उस आर्टरी से फ्लो होता है उस दौरान कुछ प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है, एंड दैट प्रेशर विच इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी फ्रॉम इनसाइड is nothing but the blood pressure. So when we talk about the definition itself, it is suggesting that it is the pressure which is exerted by the wall, on the wall of the arteries by the blood. Now generally when we talk about blood pressure, students, there are two types of blood pressures जो अपने को पता होने जरूरी है. So there are two blood pressures. Okay, हमारे पास दो blood pressures है. The very first is called as the systolic blood pressure. Okay, you have the systolic blood pressure, and then you have the diastolic blood pressure. Okay, so once you have one you have the systolic blood pressure, and another is what is called as a diastolic blood pressure. Now what is systolic blood pressure and what is diastolic blood pressure, students? Systolic blood pressure is nothing but when the heart कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त पे जो प्रेशर रहेगा उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर व्हेन द हार्ट अंडरगोज रिलैक्सेशन. व्हेन द हार्ट अंडरगोज रिलैक्सेशन, द प्रेशर व्हिच इज प्रेजेंट is called as the diastolic blood pressure. Now when we talk about categorically about the blood pressure, significantly जब अपन blood pressure के बारे में बात करते हैं, either it can be the systolic blood pressure or it can be the diastolic blood pressure. You have the normal blood pressure. ठीक है, एक कोई तो वैल्यू होगा ना हमारे बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज अबाउट 120 by 80 millimeters of mercury. Hg stands for mercury, mm stands for millimeter. It is a unit of identification of the pressure inside the body. So the normal blood pressure का वैल्यू हमारे पास क्या आया? 120 by 80. इसमें से ये जो आपका 120 है इट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड जो ये 80 है इट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. यहां तक समझ में आ रहा है? सो ये एक बेसिक आपके पास ब्लड प्रेशर का वैल्यू है. डेफिनेटली ये काफी ज्यादा वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स. It will not be fixed at all. It will be highly variable. It is going to change based on age.
it is going to change based on gender, it is going to change based on the diseases, some pre-existing medical conditions and all of these things. But on an average आप इतना समझ के चलेंगे कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर का वैल्यू है across is approximately or on an average of 120 by 80 millimeters of mercury. So this blood pressure, now conditions you should understand, there are various conditions जिसके ऊपर ब्लड प्रेशर जैसे कि मैंने बताया डिपेंड करता है. सबसे पहला यू हैव एज, ओके. सेकेंड यू हैव जेंडर, ओके, जेंडर. थर्ड इज आर देयर एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, ओके. अगर कोई पहले से कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं, ठीक है. देन अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो नहीं. देन यू हैव सर्टन अनदर टर्म्स विच इज कॉल्ड एज peripheral resistance. Okay, you have peripheral resistance, one important factor and condition. Then you have the second most, which is called as the venous return. ठीक है. ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जिसके ऊपर ब्लड प्रेशर बहुत डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी देखो पहले 3 टॉपिक्स तो आई थिंक क्लियर है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं. एज हो गया, जेंडर हो गया एंड मेडिकल कंडीशंस, इन तीनों के ऊपर ब्लड प्रेशर आपका बहुत डिपेंड करता है. बट साथ ही साथ पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब क्या? इफ देयर इज सम, सी द अल्टीमेट ब्लड वेर इट रीचेस इज टू द सेल. ठीक है. सेल को ब्लड देने का काम सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल कर रहा है. उस थिनेस्ट ब्लड वेसल का नाम है कैपिलरी. समझ में आ रहा है? तो कैपिलरीज के अगर आसपास कहीं पे कुछ ब्लॉकेजेस है क्या, वेन्स के अंदर कोई ब्लॉकेजेस है क्या, या कुछ वैस्क्यूलेचर में उस ब्लड वेसल्स के आर्किटेक्चर में कहीं पे कुछ ब्लॉकेजेस है क्या, अगर ब्लॉकेजेस है तो डेफिनेटली ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा. उस केसेस में भी ब्लड प्रेशर वेरी कर सकता है. Now, the fifth most condition, which is quite a bit important, which is the venous return. Now, students, what is venous return? Venous return is nothing but the amount of blood brought by the veins to the heart. Okay? अगर veins में कहीं पे blockages है, अगर कहीं पे vasculature में कहीं पे भी blockages है, तो कहने से venous return घटेगा. ओके क्यों ऐसा? बिकॉज अगर बाई चांस ब्लड वेसल इस तरीके से कुछ है और बीच में कहीं पे कुछ ऐसे रोड ब्लॉक डाल दिए, ब्लॉक हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो जो ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है वो ब्लड को आने को दिक्कत हो सकता है. विच मीन्स दैट द वीनस रिटर्न वुड रिड्यूस. इफ द वीनस रिटर्न reduces, इवेंचुअली पेरिफेरल वैस्कुलेचर में, पेरिफेरल सिस्टमिक ऑर्गन्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. विच मीन्स अगेन ब्लड प्रेशर के ये बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं. Students, so basic is this. How do you measure the blood pressure? Now blood pressure is measured by an instrument. Okay, there's an instrument. Can you tell me the name of the instrument? Yes, the name of the instrument is sphygmomanometer. It is called as sphygmomanometer. A sphygmomanometer is the name of the instrument that you use for identification of blood pressure. So आपके पास यहाँ पे you have a cuff which is placed around the hand, and then a doctor is going to inflate and deflate the balloon, which is this greenish in color. ठीक है. and इधर mercury रहता है. So जैसे डॉक्टर इन्फ्लेट करता है बलून को तो मर्क्यूरी ऊपर जाता है. ओके एंड उसके हिसाब से डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं. देयर आर स्पेसिफिक फेजेस. ओके देयर आर फेजेस जिसके कारण आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो. These phases are called as Korotkoff. These phases are called as Korotkoff phases. Korotkoff phases. ये Korotkoff phases क्या है students? Korotkoff phases are used in identification of the blood pressure. ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करने में ये Korotkoff phases बहुत हेल्प करते हैं. So basic idea about blood pressure and all of this is I think very very clear. अगर by chance मैंने अगर डिफरेंस लिया, ठीक है, सुनना जरा. The difference between systolic blood pressure and diastolic
blood pressure is what is called as the pulse pressure. ठीक है, पल्स प्रेशर मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का अगर आपने डिफरेंस लिया तो जो वैल्यू आएगा उसको आप बोलेंगे पल्स प्रेशर. ठीक है, पल्स का मतलब आई होप यू नो दैट दिस इज पल्स इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग हार्ट रेट. ठीक है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट योर हार्ट रेट. आपका हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज. सो जनरली आप जब हार्ट रेट कैलकुलेट करते हो सो हार्ट रेट इज कैलकुलेटेड थ्रू आर्टरीज. कोई एक हाथ आर्टरी आपको पता है जो डॉक्टर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं? देखो डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो डॉक्टर यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे दिस एरिया, ओके, नियर द आर्म और द रिस्ट जॉइंट, यहाँ पे टच करता है और यहाँ पे चेक करते रहता है. देयर इज सम आर्टरी व्हिच इज लोकेटेड देयर एंड द नेम ऑफ द आर्टरी मोस्ट कॉमन location, and this most common location is nothing but the radial artery. ये जो रिस्ट के ऊपर जो आर्टरी है आपका वो रेडियल आर्टरी, और यहाँ से डॉक्टर जनरली फाइंड आउट करते हैं कि आपका पल्स क्या है, का हार्ट रेट क्या है. सो दिस इज जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर. ना ब्लड प्रेशर अगर बाय चांस ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, अगर बाय चांस उसमें कुछ डिफरेंसेस आ गए, कुछ चेंजेस आ गया, so then what can be the condition, students? The next condition that we have to discuss is something very very important, and this is called as disorders of circulatory system. Okay, disorders of circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला अपन देखेंगे विच इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. ओके, हाइपरटेंशन. बहुत सारे बच्चों को लगता है हाइपरटेंशन मतलब ज्यादा टेंशन. बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. हाइपरटेंशन मतलब, यस करेक्ट, हाइपरटेंशन मतलब अ कंडीशन ऑफ increased blood pressure, जहां पे आपका ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है. अभी ये हाइपरटेंशन कब बॉदरसम है, देखो सी अंडरस्टैंड दिस. नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है बच्चों? आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? मैं एनबीपी लिख रहा हूं. नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर. ठीक है, अभी बाय चांस कभी अगर ऐसा हुआ कि भाई यू कैन हैव हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन कैन बी कंडीशन इन विच you have blood pressure which can go from 180/90. ओके, 180/90. कभी कभी आपको ये भी दिख सकता है 180/110. दिस इज ऑल्सो mm of Hg. दिस इज ऑल्सो mm of Hg. ओके, कुछ भी वैल्यू जो नॉर्मल से ज्यादा है कैन बी क्लासिफाइड एज हाइपरटेंशन. So hypertension can be relatively very very serious condition because now this high blood pressure can be caused mainly two reasons. Okay, बहुत सारे reasons है, but जो आपके syllabus में है उसके दो main reasons मैं यहाँ पे cover करता हूँ. Number one is called as atherosclerosis. Okay, and the second is called as arteriosclerosis. So one is called as atherosclerosis, another is arteriosclerosis. दोनों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हाइपरटेंशन का कंडीशन है क्या, कि जहाँ पे ब्लड प्रेशर का वैल्यू बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, और ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होगा देयर कैन ऑल्सो बी हेमरेजेस, देयर कैन ऑल्सो बी इंटरनल ब्लीडिंग. ओके, बिकॉज ये अंडरस्टैंड आर्टरी का एक कैपेसिटी है स्ट्रेच होने का. ओके, आर्टरी का एक कैपेसिटी है स्ट्रेच होने का, एंड उस कैपेसिटी के बाहर अगर ब्लड प्रेशर बहुत फोर्स से अंदर जा रहा है, कैन आई से आर्टरीज विल लूज इट्स इलास्टिसिटी.
Okay, and if they lose up the elasticity, that can create further other problems, which means ki blood pressure now will be drastically reduced, which is called as hypotension, which can occur in conditions of old age, jahan pe, because see, it is a kind of a muscle, it's a tissue, it has its ability to either expand or constrict. Now that ability can be lost as you progress with age. Okay, so inelasticity of the blood vessel can another be the problem. So multiple reasons you have, and in order to ensure that your health remains your most priority, it's important for us to ensure that our blood pressures levels are in check. Anything higher than normal is a very alarming signature that you'll have to take certain immediate measures in order to control that. If at all there are some problems with related to blood pressure, you can have certain other secondary conditions which you may not have anticipated, and these can create another problems which can be related to heart, which is the most important organ. Then it can also bother your liver, it can also bother your kidney. So multiple eyes and all of these are multiple other organs where the damage is most prone because of blood pressure, high blood pressure. So I hope you understand this. So therefore this is the hypertension. Now अभी जरा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं दो कंडीशंस के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहला मैंने देख लिया, आपको ये बता दिया हाइपरटेंशन क्या होता है. ओके, सेकंड यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज. Okay, coronary artery disease. Now what is coronary artery disease? Coronary artery disease, it's an aging process. Okay, पहले ये समझना कि ये जो CAD है, इसको आप CAD भी बोलते हो by the way. Okay, ये जो CAD है, CAD, it's a aging process. मतलब over the period of time you will develop this. Not certainly so, but it's a kind of an aging process जहाँ पे आप ये develop कर सकते हैं. Now ये तब होता है जब there is deposition of fat, there can be deposition of cholesterol, okay, in the lining of arteries. अगर arteries के lining में there is deposition, जिसको इस deposition को इंग्लिश में आप बोलते हो प्लाक, एंड इसी प्लाक को आप बोलते हो इंग्लिश में ब्लॉकेज. डॉक्टर आपको बोलता है ब्लॉक हो गया है, हार्ट ब्लॉक हो गया है, 50% ब्लॉक हो गया है, 30% ब्लॉक हो गया, 70% ब्लॉक हो गया ना, दैट इज ब्लॉकेज. जिसकी वजह से ना स्पेस रिड्यूस्ड. देखिए ना, पहले मान लो तुम्हारे पास इतना एरिया था कि ब्लड को फ्लो कराने के लिए इतना एरिया प्रेजेंट था, ठीक है. अब क्या हुआ कि आपके पास ये ब्लड वेसल तो है, बट दिक्कत कुछ इस तरीके से हो गया है कि भाई देर इज सम काइंड ऑफ डिपोजिशन हियर. ओके, डिपोजिशन हो गया, और इस डिपोजिशन की वजह से व्हाट हैपेंड, देखो ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड, एंड दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड, ये जो कंडीशन मैंने यहां पे बताया, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस. This is called as atherosclerosis. It is atherosclerosis. Okay, किसी ने पूछा atherosclerosis तो बोलने का narrowing, ठीक है. हाँ, मतलब in general there is some kind of deposition in the internal lining of the arteries is nothing but the atherosclerosis. Generally it can be cholesterol, a bad form of cholesterol, it can be fat, and that can cause the blockage, and this blockage can lead to further complications and even heart attack. ठीक है. अगर बाय चांस इसी को थोड़ा सा पिक्चराइज अगर मैं करूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऊपर वाला जो डायग्राम है देखो थिकनिंग हुआ है, ऊपर वाला डायग्राम इज द एथेरोस्क्लेरोसिस. अब मैं तुमको बताता हूं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है. ठीक है, तीसरा जरा समझना, तीसरा द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. लुक एट द सेकंड डायग्राम स्टूडेंट्स, लुक एट द सेकंड डायग्राम. तुमको ये रियलाइज होगा कि वहां पे जो डायामीटर है वो घट गया. देखो रिड्यूस्ड डायमीटर, मतलब क्या, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी. ओके, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी. अभी आर्टरी नैरो क्यों हुई, बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स. इट्स एन एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी है,
कुछ डिपोजिशन हो गया रहेगा तो अथेरो हो गया है, ब्लड वेसल्स ने अपने इलास्टिसिटी खो दिया तो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे तो कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे वजह हो सकती है, या फिर अ पर्सन इज ऑन सर्टेन काइंड ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्टर्स मेडिसिनली, और देर इज सम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ हार्मोन सच एज वेजोप्रेसिन, जो कि अभी आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे, या फिर सेरोटोनिन। सो मल्टीपल अदर फैक्टर्स आर देयर व्हिच कैन कॉज यू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और फिर अथेरोस्क्लेरोसिस, दोनों का दोनों अगर आइडेंटिफाई करना है, देन you'll have to do what is called as, अगर मान लो कि आपको डायग्नोसिस करना है, ओके, डायग्नोसिस करना है, देन व्हाट कैन यू डू? डायग्नोसिस के लिए यू कैन डू एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी को सिंपली डिफाइन अगर करेंगे तो इट इज नथिंग बट एक्सरे ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है उसका अगर अपन विजुअलाइजेशन करेंगे तो दैट विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड एज एंजियोग्राफी। क्या बताता है ये एंजियोग्राफी? क्या बताता है? इट लेट्स अस नो द ब्लॉकेजेस। अगर ब्लॉकेज है तो कितना % ब्लॉकेज है और क्या उसको ठीक किया जा सकता है, कौन से मेथड से ठीक करना सही रहेगा। दो मेथड से आप इसको ठीक कर पाओगे, विच मीन्स देयर आर 2 मेथड्स। नाउ वन मेथड कैन बी सिंपली डू एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी इज अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, मतलब यहाँ पे आप स्टेंट डालते हो। स्टेंट एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लॉकेज को दूर कर देता है, सिंपल ब्लॉकेज को दूर कर देगा। सो इट इज यू कैन डू स्टेंटिंग प्रोसीजर, या फिर यू कैन गो विद द ओपन हार्ट बाईपास। ये बाईपास आपने सुना रहेगा, बाईपास इट्स अ टाइप ऑफ एन ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये आप कर सकते हैं। दोनों में से ऑप्शन डिपेंड करेगा कि हार्ट के ब्लॉकेजेस कौन से लेवल पे है, उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई भी मेथड आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से आप काम ले सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देन नेक्स्ट प्रॉब्लम कैन बी, जस्ट अ सेकेंड, ये कितना था? यू हैव सेकेंड, देन यू नो थर्ड। चलो थर्ड अगर बात करेंगे, थर्ड अगर डिस्कस करेंगे तो इट इज नथिंग बट द एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज एंजाइना पेक्टोरिस ना। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना इज नथिंग बट पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के लेफ्ट साइड में अगर पेन हो रहा है, एंड दैट लेफ्ट साइड पेन कैन बी राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, it can be starting from head, okay, left side of the head, then you can have shoulders involved, okay, then you can have arms, then you can have legs etc. द लेफ्ट साइड पूरा पेन जो होता है लेफ्ट साइड रेडिएट करता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपका जो लेफ्ट साइड है चेस्ट का वो थोड़ा भारी हो गया है। ऑल ऑफ दिस सिम्टम्स कैन इंडिकेट दैट इट इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। नॉट नेसेसरीली सो ऑल द टाइम अगर आपका चेस्ट पेन हो रहा है इसका मतलब हार्ट अटैक आ रहा है, प्लीज ऐसा कोई भी वहम मत रखिए, बिकॉज देर आर सर्टन कंडीशंस एंड देन यू हैव टू गो फॉर सर्टन डायग्नोसिस विच कैन हेल्प यू टू लेट यू नो वेदर और नॉट you have some kind of problem. Okay, so you should not be self-diagnosing it, but just to remember that pain radiating on the left side of the body can be an indication that there is some problem with your heart and you'll have to get it checked. ठीक है, so this is your angina pectoris. अगर by chance angina pectoris बहुत ज्यादा ट्रू निकला और अगर ऐसा genuinely कुछ प्रॉब्लम है, then you can have what is called as myocardial infarction. Okay, myocardial infarction. Students, what is myocardial infarction? Myocardial infarction is nothing but the heart attack. Okay, आपको समझना है ये हार्ट अटैक है। ओके, हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हार्ट अटैक आने के। ठीक है ना, आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से जितना पॉसिबल है उतने मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे देयर कैन बी इनएफिशिएंट इलेक्ट्रिक activity of the heart.
हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनएफिशिएंट है, ठीक है। सेकेंड, देयर कैन बी पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड का पुअर सप्लाई हो सकता है कि ब्लड ढंग से हार्ट तक आ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेजेस और समथिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके। सो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कैरेक्टरिस्टिक एंजाइना पेक्टोरिस इज वन ऑफ द वेरी गुड इंडिकेशन फॉर अस टू लेट the doctors know that yes there is some problem and we will have to investigate it, ठीक है। then the fifth condition is nothing but the साइलेंट हार्ट अटैक। ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है बिकॉज देखो ना, वर्ड खुद बता रहा है साइलेंट हार्ट अटैक, मतलब क्या कि भाई इट इज अ टाइप ऑफ अ हार्ट अटैक, ओके, इट्स अ टाइप ऑफ द हार्ट अटैक। बट दिक्कत क्या है पता है, इस हार्ट अटैक में प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये ऐसा क्लासिकल हार्ट अटैक है विच डज नॉट, इट डज नॉट शो एनी साइंस और सिम्टम्स, ओके। देखो जनरल हार्ट अटैक जो होता है आपको वहां पे समझ में आता है कि भाई आपकी कंडीशंस क्या है, अनईजी लग रहा है, डिजी लग रहा है, नोजियाटिक लग रहा है, अनकॉन्शियस लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बहुत ब्रेथलेसनेस हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, परस्पिरेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूल इन जनरल तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। बट ना साइलेंट हार्ट अटैक में आपको ना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो आने चाहिए एक हार्ट अटैक के कंडीशन के लिए, वो कंडीशंस में आपको वो कंडीशन क्या जो भी सिम्टम्स है वो सिम्टम्स आपको यहाँ पे इस केस में नहीं आते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज फिर आप अगर सिम्टम्स आ ही नहीं रहे हैं तो इंसान क्या समझेगा इसको कि नॉर्मल कोई तो चेस्ट पेन है, नॉर्मल चेस्ट पेन है या फिर कुछ है भी नहीं। सडनली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि द पर्सन माइट बी जस्ट डेड। सो देयरफॉर साइलेंट हार्ट अटैक कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज वी डू नॉट really understand what is happening with the patient, अपने को समझ में ही नहीं आता, and that is why that's a big problem which we'll have to understand। एंड यही सारी डिजीजेस है जो आपके सिलेबस में है और जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? नाउ स्टूडेंट्स, एक पार्ट इसका ही एक पार्ट बचता है जो कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो मैंने ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट तुमको बता दिया, अभी एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीजी, ओके। ईसीजी, ईसीजी स्टूडेंट्स, ये तो आपने ये ग्राफ तो देखा होगा, बहुत सारे टीवीज में, सीरीज में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। इट इज नथिंग बट इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम was discovered by scientist इंथोवन, ओके। इंथोवन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। क्या है भाई ये, अगर किसी ने पूछा बताइए कि ईसीजी क्या है, ईसीजी इज नथिंग बट द ग्राफिकल, अगर डिफाइन करना रहा, सो इट इज अ ग्राफिकल representation of electrical activity of the heart, ओके। हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर आपको पता करना है तो आप ईसीजी का यूज कर सकते हैं। ईसीजी जनरली अ टाइप ऑफ अ मशीन जो आपको ये बता सकता है कि भाई हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट में कोई इशू तो नहीं। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, तो जनरली आपके पास 3 फेजेस है। सो ईसीजी has 3 phases, ओके, एंड दीज phases आर कॉल्ड एज वेव्स, ठीक है। इस phases को ना वेव्स बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला is called as the P wave, okay, second is called as the QRS complex, third is called as the T wave, ठीक है। सो नाउ ये देखो जरा 3, यहां पे देखो, कैन यू सी P, then Q, देखो दिस इज QRS and this is T, this is your P, बराबर है। इसमें QRS बहुत बड़ा कर्व है, बहुत बड़ा एक
पीक डिफ्लेक्शन है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने ये डिस्कस करना कि भाई व्हाट डज इट डू, अभी समझना। अगर मान लो सबसे पहले अपन देख लेते पी वेव। पी वेव जो होता है वो डिफ्लेक्ट तब करता है व्हेन देयर इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन? एट्रियल डीपोलराइजेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि भाई जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, when the atrium will undergo contraction, so जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब जो एक ग्राफ आएगा, तब जो डिफ्लेक्शन आएगा, दैट डिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी वेव. So if your heart is contracting, your atriums are contracting properly enough, then definitely you will have a normal P wave. ठीक है. दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट इज QRS complex. Okay, the next component is the QRS complex. QRS complex is going to represent ventricular depolarization. Now, what do we understand by ventricular depolarization? Ventricular depolarization matlab when the ventricles undergo, yes, correct, ventricles undergo contraction. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आपको ग्राफ आएगा वो विल बी QRS। एंड आपको पता है एट्रियम का साइज बड़ा है कि वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है? वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है तो कॉन्ट्रैक्शन का जो डिफ्लेक्शन रहेगा, जो प्रेशर रहेगा वो भी ज्यादा होगा, इसलिए ग्राफ भी बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देन द थर्ड कंपोनेंट इज नथिंग बट द टी वेव। ओके, टी वेव। व्हाट इज टी वेव? टी वेव क्या है भाई? टी वेव जो होता है, टी वेव इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन ना। रीपोलराइजेशन मतलब कमिंग बैक टू नॉर्मल। जब वेंट्रिकल्स नॉर्मल पोजीशन में आते, मतलब क्या इन शॉर्ट हो रहा है? देयर इज वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन। देयर इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे उस स्टेज पे जो कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन को आप बोलते हो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, विच कैन बी शोन बाय द टी वेव ना। यही ग्राफ जब तक चल रहा है, आपने बहुत सारी टीवी सीरीज में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, जब तक ग्राफ चल रहा है तब तक ऐसा मानते हैं अपन कि भाई पेशेंट जिंदा है। और इसी को अगर मान लो इसी चीज को अगर थोड़ा फ्लैट लाइन कर दिया, मतलब ये ऐसा हुआ, देन ये ऐसा फ्लैट लाइन आया। फ्लैट लाइन मतलब क्या? द पेशेंट इज डेड। समझ में आ रहा है? सो यू कैन हैव मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ दीस ECGs also, which is not there in a state board syllabus, so we'll not be really discussing about it, but whatever is there in the syllabus is there on your screen. ठीक है, इसी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसके साथ डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी रहेगा। ये जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इट्स फन एंड इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक द चैप्टर इज द lymphatic system. Lymphatic system. Now, what is lymphatic system? Lymphatic system is nothing but it contains, हमारे बॉडी में एक टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है ये। ओके, एक टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है, which means कि lymph जो होता है, lymphatic vessel contains, lymphatic system contains lymph. Okay, lymph is nothing but the clear water. It's a watery structure or a watery consistency type fluid. And इसके पास क्या होता है? Everything you have except there is no RBC. Okay, there RBCs इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर some proteins भी, there are few proteins which are also एब्सेंट। ठीक है, ये सब छोड़कर बाकी जो भी वाटरी कंसिस्टेंसी वाला जो फ्लूइड बनेगा, इट इज कॉल्ड एज द लिम्फ। तो लिम्फ होता क्या है? so, लिम्फ जो होता है क्लियर वाटर, जैसे मैंने बताया। नाउ इट कैन फ्लो, मतलब देयर कैन बी फ्लूइड्स व्हिच कैन फ्लो फ्रॉम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मतलब अलग अलग टाइप के दो सेल्स के बीच वाले जगह से कुछ फ्लूइड है जो फ्लो होके दिस इज गोइंग टू जॉइन टू द
lymphatic system. Okay, and lymphatic system is finally going to pour it to the heart. So right side में हम देख सकते हैं कि कुछ डायग्राम इस तरीके से बना है, डिफरेंट टाइप के पूरा ग्रीन कलर का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है. इस लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, रफली बता देता हूँ. कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड खुद लिम्फ. ठीक है, दूसरा यू कैन हैव lymphatic vessels. Okay, lymphatic vessels. Third, you can have lymph nodes. lymph nodes का significance बहुत ज्यादा है immune system में, तब अपन डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर बात करना है. So this is the basic understanding of the lymphatic system, जो कि आपके सिलेबस में जितना है उतना sufficient है. सब चीज आकर at the end of the day it is going to be poured into the heart के अंदर ही सारा चीजें enter हो जाएगा. So by and large, this is what the entire chapter is talking about. We started with respiration. We finished respiration also. We finished circulation also now. And the next chapter, which we are starting with, will be control and coordination. One of the most interesting chapters because it is obviously this brain and as the the central part of our body who is regulating everything. So kind of very interesting, and especially so because all of the functions that you're doing right now what you're watching through your mobile phone has also been controlled and managed by your brain. So very, very interesting to know what are the basic things and systems involved in the brain and all of that, which is due for the next module. So next module will be starting with control and coordination, and then we'll take it forward. ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे ही खत्म करते हैं. ये चैप्टर मेजर जितना भी जो पार्ट है मैंने एवरीथिंग almost everything I've covered, and whatever you are required in your syllabus as far as your board exam is concerned and your CET exam is concerned. Okay, there are multiple aspects more to it which can be covered in NEET level, so which we have not discussed here, but I think whatever we have studied is more than sufficient and आपके लिए I think उतना beneficial रहेगा. अगर by chance कुछ doubt आता है बच्चों, please let us know in the comment section. We'll be very, very happy to reply you back, and if you like our efforts, please do comment कि भाई क्या improvisations आपको चाहिए, क्या चेंजेस आपको चाहिए और क्या हम मॉड्यूलेशंस कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल द फैकल्टीज दैट यू सीइंग ऑन द स्क्रीन are working for you. Okay, so if you have any kind of feedback, please do not hesitate. Let us know, let the faculty team know, let the academic team know, and we can make the necessary changes if it is in our possibility. For sure, we can do that. I hope so. This chapter was well clear. Please also go back to the earlier chapters that we started. वो भी सारे चैप्टर्स एक बार प्लीज देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो कि आपको वर्थ रहेंगे देखने के लिए और समझने के लिए स्टूडेंट्स. आई होप वट एवर वी स्टडीड इन दिस मॉड्यूल एंड इन दिस चैप्टर इज क्लियर. I'll see you in the next class. If you like our video, if you like this video, please give it a like button. Subscribe to this YouTube channel of YSR Academy. Comment down in the comment section, and I will see you in the next class. Till then, take care and stay safe.